Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you'd be fine. I'm here with a new video, new story, new textbook. So today we are going to learn something about an expedition, a journey about Robinson Crusoe, and it's this very interesting story about a person who started his journey and how did it ended up. It's completely adventurous and full of thrill. So let's begin with the words to know box, the words meaning that are covered over here, and I'm going to discuss further words meaning that we are going to come across in the whole story. First, let's discuss the words meaning that are given over here. Ammunition, all the items of weapons, that includes bullets, shells, missiles, and any other thing that is used as a weapon, that is used for self-defense or for attacking purpose to kill someone else, right? So it's called ammunition. Course, route, way. Course is a word that is used in different sort of meanings. Sometimes we use this word for things that we grind, that is grinding something into small tiny pieces, that is not in a powder form but small particles, that is also called coarse, right? But here it means the route or way. Similarly, course is a word that is used for the books and copies and other items that we buy for our academic studies. Gigantic, it's not gigantic, it's gigantic. Gigantic. Huge, enormous, very large or tall, something of mass level. ठीक है, बहुत बड़े जो भी चीज़ होती है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं gigantic. Then we have hurricane. Hurricane is a severe tropical storm. It could be a cyclone or any sort of storm, but it is of a severe nature, right? That is called hurricane. तूफ़ान आ जाना पानी में, समंदर में, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, उसको कहते हैं हम हरिकेन. Mast, a vertical pole that supports the sails on a ship. Here in this figure it is shown over here, this pole, students, this vertical pole is basically mast that is supporting these sails on a ship. Then we have another word, overboard, over the side of a ship and into the water. Over the side of a ship and into the water. So these are the sides of a ship that are into water are called overboard, right? Resolved, set on a particular course of action. Decided, something to decide, to implement. Course of action is called resolved. Stockade, a tall fence or enclosure made of wooden posts to keep out enemies. As you can see over here again in this picture, students, this fence is called an stockade, right? It's a boundary wall of a sort of house or made of wooden that is basically made to resist the entrance of enemies. Next is tornado, a destructive funnel-shaped rotating column of air, a windstorm. Again, it's a sort of a catastrophe. It's a miserable sort of hurricane or tropical storm. So it's basically a windstorm. The difference between hurricane and tornado is it is a cyclone that we come across in the oceans or seas, and tornado is a wind storm, right? So this is the difference between these two, hurricane and tornado. Vessel is a ship. Violent means using physical force to cause hurt or damage. Voyage is a journey by sea or air, especially one to a distant place. Voyage is any sort of journey, an expedition that is for a certain purpose or to a distant place. Now in the very first paragraph we have some summary about this story, Robinson Crusoe. So let's begin. Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. Here it's the name of author.
Daniel Defoe was born in 1660. His father was a butcher. Butcher means meat person, and Daniel Defoe worked at a number of trades before he started to write at the age of 40. So at the age of 40 he started to write, and before that he was engaged in a lot of trade. He wrote poems and occasionally wrote criticisms of the government. Occasionally means time to time, sometimes, and criticisms means negative opinion. To criticize someone is called criticism. So he started to write poems, and occasionally he wrote criticism of the government. Sometimes he was sent to prison, that is jail. When he was nearly 60, he wrote the story of Robinson Crusoe. So this story was written at the age of 60 by Daniel Defoe. It was a great success and has been popular with children ever since. It's the first great English novel. In this story, short piece from the book Robinson Crusoe tells us how he became shipwrecked. Shipwrecked means something destroyed, something sunk into a sea. Here the story begins. We started off on our voyage in good weather, although it was very hot. After about 12 days, that is after about 2 weeks, however, a violent tornado came from the north. The waves rose high. Rose is the second form of rise. Rise means to get up from your place. ठीक है, हवा में बुलंद हो जाना. The skies were black and the wind howled through the sails. 2 members of the crew were washed overboard, and after a day or two, the ship began to leak. So this was the point when the misery started, when the destruction began. We changed our course and sailed out of the hurricane, but the next day a second terrible storm attacked us. We could see the shore of some unknown land, but the sea was very rough. The rain dashed down, and we were afraid to approach close to the land. Our only hope was to clamber into a small boat and try to row to the shore. 4 of us managed to get the boat into the sea, and we jumped into it. We rowed with all our might, but the waves were like mountains. We struggled on, but at last a gigantic wave greater than all the others hurled our little boat into the air and sank beneath us. Let's discuss some of the words meaning, students. We have discussed these till rose, and now a few more. Howl means to cry, to roar. Chikhna, chillana. Sail means to drift the boat. Crew is the team party that is along with each other on a journey. Overboard means extreme, to knock off a boat. बोट से बाहर निकल जाना. ओवरबोर्ड का हमने मीनिंग पढ़ा था, जो उसके साइड्स होते हैं उनको कहा जाता है बोट को. लीक मीन्स टू स्केप, डिस्चार्ज, बहना. हरिकेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. टेरिबल, ऑफुल, हॉरिबल, खतरनाक, हैबतनाक. शोर इज द सी साइड, बीच. डैश्ड डाउन, गेट डाउन. Approached means near, close. Clamber means scramble, to climb on a mount. Row, to fight. Sail, might with strength, all power. Struggled, fight. Gigantic, huge. Hurled, throw, toss. Beneath means below. तो स्टूडेंट्स, डेनियल डेफो हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. बहुत अच्छा मौसम था, गर्मी थी, लेकिन तकरीबन 12 दिन के बाद एक ख़तरनाक सा साइक्लोन आ गया और वो नॉर्थ की तरफ से उनकी तरफ बढ़ रहा था. अचानक से जो लहरें थीं वो बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई. आसमान बिल्कुल ब्लैक हो गया और हवाएं बहुत तेज़ इधर उधर से चलने लगीं. इनके 2 जो साथी थे वो पानी में अपने साइड्स से ही जो है वो कश्ती से निकलकर बह गए, और इनके साथ जो थे जितने मेंबर्स उसमें से 2 कम हो गए. और उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद इनकी जो शिप थी उसमें पानी अंदर से बहना शुरू हो गया. कहीं से सुराख हो गया और पानी अंदर आने लगा, और उन्होंने फिर जो है वो अपना रास्ता जो था वो तब्दील कर लिया. और जो हरिकेन जिस तरफ से आ रहा था, जिस तरफ से जो है वो समंदर में तुग़यानी थी, तो उन्होंने बिल्कुल वहाँ से रास्ता अपना बदल लिया. लेकिन अगले ही दिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक तूफ़ान ने और जो है वो सैलाब ने उनके ऊपर हमला किया, और उसके बाद फिर उन्होंने करीब में ही इत्तेफाक से साहिल समंदर देखा. लेकिन समंदर बहुत बुरी तरह से जो है वो उसमें तुग़यानी आई हुई थी और वो बहुत बुरी तरह से बिखरा हुआ था, और ऊपर से बारिश शुरू हो गई और बारिश भी मूसलाधार बारिश थी.
तो बस इनको यही खौफ था कि ये ज़मीन तक पहुंच पाएंगे भी या नहीं। उनकी जो आखिरी होप थी वो यही थी कि एक छोटी कश्ती में वो जो है वो साहिल समंदर जो उनको नज़र आ रहा था वहाँ तक पहुँच जाएँ। 4 बंदे इनके जो है वो उस कश्ती के अंदर सवार हो पाए और उसके अंदर कूद गए छोटी कश्ती के अंदर, और उसके बाद फिर अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ समंदर की जो लहरें उनके ऊपर हमला कर रही थी उसके जो है वो मुखालिफ में वो चलते हुए समंदर के साहिल तक आने की कोशिश करने लगे। लेकिन समंदर की जो लहरें थीं वो पहाड़ों जितनी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा बुलंद हो रही थी कि इनके लिए कश्ती को चलाना और साहिल तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था। फिर भी इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक बहुत ही ऊंची जो है वो लहर आई और बहुत ही पावरफुल जो है वो लहर थी। इससे पहले इतनी मजबूत लहरें नहीं आई थी, और उसने क्या किया कि इनकी कश्ती को इन्हीं के ऊपर उलट दिया और ये सारे के सारे जो है वो डूब गए, पानी के अंदर गिर गए। Next, I am a good swimmer, and for an hour and a half I battled in that stormy sea. As I caught sight of the coast, a huge wave would lift me up and carry me out to the sea again. I tried to reach the shore again, and I was thrown away by the raging seas again and again. At last, I was hurled towards the shore and fell down exhausted on the sand. तो अपने बारे में ये बता रहे हैं डेनियल डेफो कि मैं बहुत अच्छा स्विमर था और तकरीबन 1 और आधा घंटा मैं समंदर के साथ लड़ता रहा, और मेरे ऊपर बार बार जो लहरें थी मुझे उठा पटक कर रही थी, इधर से उधर फेंक रही थी, और समंदर से जो है वो बार बार मुझे जो है वो बाहर निकाल रही थी, बार बार इधर उधर फेंक रही थी। लेकिन जो है मैं बार बार साहिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था और बार बार साहिल से मुझे दूर फेंका जा रहा था, यानी जो लहरें थी मुझे साहिल तक पहुंचने नहीं दे रही थी। लेकिन बिल आखिर मैं हिम्मत करते और मेहनत करते आखिरकार थक हार कर साहिल समंदर तक पहुंच गए। Here you can see he has reached to the shore at last. The night was dark without a star in the sky, and I knew that lying on the sand would be dangerous. So all the 3 fellows of him who were along with him on the boat were no more with him. ठीक है, he was all alone on the seashore. Nobody was accompanying him. So might be possible that all the other 3 were drowned and died. तो बाकी जो लोग थे इसके साथ 3 वो शायद समंदर में डूब गए थे और मर गए थे, क्योंकि ये अपने बारे में बता रहा है कि ये ख़ुद बहुत अच्छा स्विमर था, इसको तैरना आता था, तो इसलिए ये साहिल समंदर तक पहुंच गया। बहरहाल जो समंदर की रात थी वो बहुत ज़्यादा तारीक थी और कोई जो है वो सितारा नज़र नहीं आ रहा था। ये बस वहाँ पर पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा ज़ाहिर थक चुका था और बहुत ज़्यादा जो है वो इसको ख़तरनाक भी था कि यहाँ पर मैं अगर पड़ा रहा और कोई जानवर आ गया तो जो है वो मुझे खा जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बिल्कुल एक नई जगह थी और वहाँ पर कोई इर्द गिर्द नहीं था, तो इसलिए भी ये डर रहा था। तो ये बिल्कुल क्रॉलिंग करते हुए ज़मीन पे घसीटते घसीटते समंदर से थोड़ा सा दूर जो है वो चला गया, ताकि जो है वो समंदर दोबारा इसको पकड़ के लहरों में ना धकेल दे, और जहाँ पर दरख्त थे और झाड़ियाँ थीं ये वहाँ पर जाके साइड पर लेट गया। और उसके बाद वो कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि वहाँ पर किस किस्म के वाइल्ड एनिमल्स होंगे, कौन से जानवर जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं, इसको इनका कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। I didn't know what wild animals there would be in the forest, so I climbed up on one of the trees and made myself comfortable between the great branches. There I slept the night as well as I could. तो जब इसने कहा कि यार मुझे कोई जहाँ पर आके जानवर ना खा जाएं, तो मैं क्या करता हूँ कि किसी दरख्त पर चढ़ जाता हूँ और वहाँ पर सो जाता हूँ। तो ये दरख्त पर चढ़ गया और वहाँ पर सुकून से सो गया। इन द मॉर्निंग आई लुक्ड आउट अक्रॉस द सी एंड देयर वाज आवर शिप अ क्वार्टर ऑफ अ माइल अवे फ्रॉम द शोर। तकरीबन 1/4 माइल दूर, यानी कि 1 माइल का चौथाई हिस्सा ये जो है वो तकरीबन दूर इसको अपनी कश्ती नज़र आई। जब सुबह हुई तो आई केम डाउन द ट्री एंड फाउंड अ स्ट्रीम वेयर आई ड्रैंक सम ऑफ द कूल फ्रेश वाटर। इसको करीब ही जो है वो एक पानी की नदी जाती हुई नज़र आई जिसमें ये पानी पी सके, क्योंकि समंदर का पानी तो नमकीन होता है और उसमें से पिया नहीं जा सकता। तो इसको वहाँ पर एक चश्मा नज़र आया पानी का, तो इसमें से उसने ठंडा ठंडा पानी पिया। आई ले डाउन एंड स्लेप्ट अगेन। और ये जो उस दरख्त से नीचे उतर कर आया था, तो जहाँ पर इसने पानी पिया था वहीं पर दोबारा लेट के और सो गया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थक चुका था। द सन वॉज हाई एंड
द स्काई व्हेन आई वोक अप, जब जो है वो सूरज, मैं उठा तो पूरा सूरज जो है वो आसमान में चमक रहा था. आई रिजॉल्व टू गो आउट टू द शिप एंड टू ट्राई एंड ब्रिंग बैक सम थिंग्स विच वुड बी यूजफुल टू मी ऑन द आइलैंड. सो ही डिसाइडेड कि ये वहाँ से कुछ चीज़ें शिप से जो है वो ले आए ताकि जो इसको ज़रूरत पड़े तो इसको मुश्किल पेश ना आए. आई प्लंग्ड इनटू द सी एंड मेड फॉर द शिप. Plung means to dive, to jump into the sea, and made for the ship. That is, I tried to reach to the ship. At last, after a hard swim, I managed to reach it and discovered a rope hanging over the side. ठीक है, इसने कोशिश की, समंदर में कूद गया और इसको एक रस्सी मिल गई. ठीक है, पहले ये पहुंच गया समंदर की जो है वो वहाँ पर जहाँ पर इसकी शिप थी मौजूद. ठीक है, और वहाँ पर इसने एक ढूंढ निकाली रस्सी, एक मोटी सी रस्सी इसको वहाँ पर मिल गई, क्योंकि अक्सर जो है वो जहाज़ों के अंदर, पानी के जो जहाज़ होते हैं उसमें ये रस्सियाँ वगैरह होती हैं जिससे लंगर डाला जाता है ताकि जो है वो कश्ती को या जो जहाज़ है उसको रोका जा सके. तो वहाँ से उसको एक जो है वो रस्सी मिल गई. विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई पुल्ड माई सेल्फ अप द रोप एंड रीच्ड द डेक. ठीक है, और उस रस्सी से ऊपर चढ़ के जहाज़ के अंदर कूद गया. ठीक है, जहाज़ के अंदर जाने के लिए उस रस्सी के ज़रिए ये, क्योंकि ज़ाहिर है जहाज़ की जो क्या नाम है वॉल होती है तो वो तो ऊंची होती है, उसके अंदर आपको जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए. और वैसे तो वो आके साहिल पर खड़ी होती है तो वहाँ पर सीढ़ी वगैरह लगाई जाती है, लेकिन समंदर के बीच में तो ज़ाहिर है उसके अंदर कोई सीढ़ी नहीं है, उसके अंदर जाने का कौन सा रास्ता होगा. तो ये उस रस्सी के ऊपर चढ़ता हुआ उसके अंदर कूद गया जाके. ठीक है, और जो डेक होता है यानी कि कश्ती का जो सरफेस होती है उसके ऊपर पहुंच गया. द स्टॉर्म हैड डैमेज्ड एवरीथिंग, जो तबाही फैलाई थी तूफ़ान ने वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़राब कर दिया था उसने हर चीज़ को. देयर वर ब्रोकन मास्ट एंड टॉर्न सेल्स एंड पीसेस ऑफ रोप ऑल ओवर द शिप, तो हर जगह मुख्तलिफ चीज़ें बिखरी हुई थी. आई वेंट डाउन इनटू द केबिन्स एंड फाउंड एन एक्स, मैं केबिन में चला गया, वहाँ पर मुझे कुल्हाड़ा मिला. ऑन डेक अगेन आई कट द मास्ट एंड रोप्स एंड मेड माई सेल्फ अ स्मॉल राफ्ट, और मैंने डेक पर आके वापस कुछ मास्ट काटे, कुछ रस्सियाँ ली और मैंने एक छोटी सी राफ्ट बना ली. राफ्ट किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, कि एक तख्ता हो और जो पानी में तैरने के लिए काम आ सके. तो लकड़ियाँ जोड़ी उसने, जैसे ये आपको यहाँ पे लॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो 3-4 लॉक्स को एक साथ करके और रस्सियों के ज़रिए, मास्ट के ज़रिए उसने उनको आपस में जोड़ के एक छोटी सी राफ्ट बना ली. राफ्ट क्या होता है, मैंने बताया ना, छोटा सा तख्ता. I managed to get this raft into the sea and tied to the vessel with a rope. और फिर उसने क्या किया कि इसको पानी में आराम से करके उतारा और उसके साथ इसने शिप के साथ इस एक रस्सी के ज़रिए इस राफ्ट को बांधा. आई फाउंड सम ऑफ द सीमेंस बॉक्सेस ऑन बोर्ड, और वहीं पर इसको कश्ती में जो है वो जो लोग थे जो इसके साथ सवार थे उनका कुछ बॉक्सेस नज़र आए सामान के, फिल्ड विद स्टोर्स, जिसके अंदर काफ़ी सारा सामान था. क्या क्या सामान था, ब्रेड, राइस एंड चीज़, यानी खाने पीने की उसके अंदर काफ़ी अशिया मौजूद थी. ऑल दिस आई पाइल्ड ऑन द राफ्ट एंड हैविंग फाउंड अ ब्रोकन ओर आई कास्ट ऑफ फ्रॉम द वेसल एंड स्टार्टेड फॉर द शोर. उसने ये सारी चीज़ें अपने राफ्ट पर डाली और उसको एक ओर मिला जो उसने वो भी वेसल के ऊपर डाला, और उसके बाद फिर ये वापस साहिल की तरफ आने लगा. When I reached the sand, I carried the things up on to the dry land. जब ये मिट्टी के पास पहुंचा यानी कि उस शो पे पहुंचा तो उसने सारी चीज़ें ज़मीन पर उतार दी. Let's discuss some more meanings. Battle means to fight. Coast is seashore. Lift up, to elevate, to raise. Ragging means furious, angry, गुस्सा होना. Exhausted, weary, tired, थक जाना. Comfortable, enjoyable, आरामदेह. Stream, river, पानी का चश्मा या दरिया. Plunged, jump, dive, कूद जाना. Deck is terrace, part of ship you walk on. पानी का वो कश्ती का वो हिस्सा जिस पर आप चलते हैं. मास्ट मीन्स यार्ड, टिम्बर, ट्रंक. मैं आपको बताया था कश्ती में जो वर्टिकल एक डंडा होता है, पोल होता है, जिससे उसके मुख्तलिफ़ चीज़ों को बांधा जाता है. राफ्ट मीन्स क्राफ्ट, हीप, बोट, तख्ता. और मीन्स पैरल, ब्लेड, चप्पू को भी कहा जाता है जिससे जो है वो कश्ती को चलाया जाता है. कास्ट ऑफ, टू थ्रो अवे. बीस्ट, एनिमल, वाइल्ड क्रिएचर. स्टो मीन्स स्टॉक, रिजर्व्स. टॉइल्ड मीन्स स्ट्राइव, एफर्ट, कोशिश करना. डिज़ायर मीन्स टू विश फॉर, किसी चीज़ की तमन्ना करना. रोल्ड अप, टू वाइंड अप, ख़त्म कर देना. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉकड अलॉन्ग द शोर एंड अप अ लिटिल हिल. अगली सुबह फिर वो दोबारा से जो है वो उठा और थोड़ा सा ऊंचाई पे चढ़ा. फ्रॉम देयर आई कुड सी दैट आई वॉज ऑन एन आइलैंड. और यहाँ से उसको पता चला जब वो थोड़ी सी ऊंचाई पे गया कि मैं तो एक आइलैंड पे पहुँच चुका हूँ. आइलैंड किसको कहते हैं स्टूडेंट्स,
एक ऐसा ज़मीन का खित्ता जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, उसको हम आइलैंड कहते हैं, ठीक है, जजीरा। आई वॉज अ प्रिजनर, मैं कैदी था, विदाउट अ फ्रेंड इन द वर्ल्ड, मेरा कोई दोस्त नहीं था। ज़ाहिर है जब कोई इंसान ही नहीं है तो दोस्त कहाँ से होगा। देयर वॉज नो वन लिविंग ऑन द आइलैंड बट वाइल्ड बीस्ट, यहाँ पर सिवाय जंगली हयातियात के और कुछ भी मौजूद नहीं था। द नेक्स्ट डे आई वेंट बैक क्रॉस द सी एंड ब्रॉट सम स्टोर्स फ्रॉम द शिप। Every day I toiled, I brought tools, wood, rope, nails, sails and clothes, guns and ammunition, and sugar and flour and bread. In one of the wooden boxes I found gold and silver coins. The sunshine made them sparkle. So you see students, he made the habit of going back to his ship every day, and he used to bring back things that were useful for him. तो काफ़ी सारी चीज़ें वो रोज़ाना समंदर में जाता था, कश्ती में से निकाल कर अपनी राफ्ट पे लाकर डालकर और जो है वो साहिल समंदर पर लेकर आ जाता था। एक दिन इसको एक डब्बे के अंदर कुछ सोना और चांदी भी मिला और सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ रही थी तो वो चमक रहे थे। What use are you to me? I asked. Everyone in the world desires you but me. तो यहाँ पर उसने जब सोना और चांदी देखा तो उसने कहा, सारे लोग तुम्हारी तमन्ना करते हैं सिवाय मेरे, क्योंकि तुम मेरे लिए किसी काम के नहीं हो। वैसे तो हम मरे जाते हैं ना, अगर हमें सोना और चांदी मिल जाए तो हम तो उसके पीछे भागते हैं क्योंकि हमें पता है कि ये कितने कीमती हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई बायर चाहिए कि जिसको आप वो बेच के और अपना ज़रूरियात ज़िंदगी पूरा कर सकें। या ख़वातीन इसको खूबसूरत लगने के लिए पहनती हैं, तो उसके लिए इनमें से कोई मकसद इनका नहीं था, तो इसके लिए वो बिल्कुल बेकार थे। When I got back to my island, I noticed that the sky was black. Great clouds rolled up from the west. The rain poured down. I saw the ship out at sea rise and then sink beneath a huge wave. तो एक दिन जो है जब ये वापस आया तो उसने देखा आसमान बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और काले काले बादल आ रहे हैं, वेस्ट से बारिश हुई और उसके बाद उसने देखा कि उसकी जो कश्ती है, उसका जो जहाज़ है पानी का, वो समंदर में थोड़ा सा उठा पहले और उसके बाद नीचे जाके एक लहर में ने उसको डिबो दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई बिजीड माई सेल्फ इन मेकिंग अ हाउस विद अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेड राउंडेड। इसके बाद अगले चंद महीनों तक उसने क्या किया कि एक घर बनाना शुरू किया और उसके इर्द गिर्द उसने एक जो है वो स्टॉकेट भी बनाया, यानी कि एक मुंडेर भी बनाई। स्टॉकेट मैंने आपको बताया था एक फेंस होता है जंगला के जो हिफाजत के लिए बनाया जाता है, जिससे कोई दूसरे जो एनिमल्स हैं आपकी जो भी बाउंड्री है उसको एंटर ना हो सकें, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, आई यूज वन ऑफ द सेल्स फ्रॉम द शिप फॉर द रूफ, और उसने एक सेल यानी कि वो जो कश्ती होती है उसके ऊपर जो सेल्स होते हैं उसने उन्हीं से उसकी अपनी रूफ बनाई, छत बनाई। आई कट डाउन ट्री ट्रंक्स एंड कैरीड देम टू द हाउस एंड स्लोली बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग स्टॉकेट टू कीप आउट वाइल्ड एनिमल्स। और जो दरख्त का तना होता है, जो उसका ट्रंक होता है, तो उसको काट के उसने पूरी फेंसिंग की स्टॉकेट बनाया ताकि कोई वाइल्ड एनिमल्स उसकी जो है वो घर की चार दीवारी को क्रॉस ना कर सकें। 2 months passed in hard work and one day I set out to explore the whole island. 2 महीने गुजर गए इसको अपना घर बनाते हुए। उसके बाद फिर एक दिन इसने सोचा कि मैं आइलैंड का चक्कर लगाऊं। द जर्नी टुक मी 3 days and when I got to the other side of the island I found a delightful valley. तो उसको 3 दिन लग गए पूरे आइलैंड को घूमने में, और जब वो दूसरे कोने पे पहुंचा तो वहाँ पर उसको एक बड़ी खूबसूरत सी वादी नज़र आई। वादी क्या, जहाँ पर हरी हरी घास हो, पूरी जगह जो है वो हरी हरी हो रही हो और घास से ढकी हुई हो। तो वो वाइल्ड ग्रेप्स एंड लाइम्स, वहाँ पर उसको कुछ वाइल्ड ग्रेप्स और लाइम्स मिले, लेमन्स, एंड आई कलेक्टेड अ क्वान्टिटी ऑफ दीज एंड टुक देम बैक टू माई हाउस। वहाँ से बहुत सारे जो है वो वाइल्ड ग्रेप्स और लाइम जमा करके ये अपने घर ले आया। वन डे इन द फॉरेस्ट नॉट फार फ्रॉम अ हाउस आई फाउंड सम वाइल्ड गोट्स। अपने घर से कुछ दूर उसको कुछ दिन के बाद कुछ वाइल्ड गोट्स मिल गए। आई वाज जस्ट अबाउट टू शूट वन व्हेन आई सॉ एट माय फीट अ बेबी गोट। मैं बस उसको शूट ही करने वाला था, शिकार करने वाला था मैं उसका, कि मुझे अचानक से उसका बच्चा अपने पाँव में नज़र आया। आई पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट होम विद मी। मैं उसको घर उठा कर ले आया। इन अ फ्यू डेज इट बिकेम क्वाइट टेम एंड आफ्टर दैट आई नेवर फेल्ट माई साइड, आई लेफ्ट माई साइड, ठीक है। तो मैं उसको ले आया, थोड़े दिन में वो पालतू हो गया, मेरे साथ बिल्कुल घुल मिल गया, और उसके बाद फिर उसने मुझे कभी भी छोड़कर जाना पसंद नहीं किया। आफ्टर ईयर और 2 ऑन द आइलैंड आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल बोट। 1-2 साल के बाद मैंने कश्ती बनाने का सोचा। आई चूज द बोट केयरफुली एंड कट एंड वर्क द टिम्बर फॉर मैनी मंथ्स। उसके बाद फिर मैंने लकड़ी जमा की और फिर मैंने चूज़ की लकड़ी की कौन सी लकड़ी बेहतर होगी जिससे मैं कश्ती बनाऊँ। आई मेड अ सेल फ्रॉम सम ऑफ द कैनवस आई हैड ब्रॉट ऑन शोर फ्रॉम द शिप। और मैंने जो है वो जो उसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता है, बादबान जिसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको जो है वो एक कैनवस के ज़रिए बनाया जो मैं शिप से ही लेकर उठा
उठाकर लेकर आया था। और एंड विद अ गुड विंड द बोट सेल्ड वेल, और फिर अच्छी हवा के साथ मेरी जो कश्ती थी वो बड़ी ज़बरदस्त समंदर में चलने लगी। आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू मेक पॉट्स आउट ऑफ मड, और मैंने ये भी सीख लिया था कि मिट्टी से किस तरह से गूंद के उसको जो है वो बर्तन बनाए जा सकते हैं। हाउ टू मेक देम हार्ड एंड ड्यूरेबल बाय बर्निंग देम, और किस तरह से उनको सख्त करके ज़्यादा देर तक के लिए जो है वो बनाया जा सकता है उनको जलाकर, यानी कि उनको किस तरह से बाकायदा जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं वो कैसे बनाए जा सकते हैं, ये मैंने सीख लिया था। आई ग्रू सम कॉर्न एंड राइस एंड ऑल्सो सम वीट, मैंने ये सब चीज़ें ग्रो करना शुरू कर दी। एंड आई टॉट माई सेल्फ टू मेक ब्रेड, मैंने रोटी भी बनाना सीख ली। माई लाइफ ऑन द आइलैंड वॉज अ हैप्पी वन, अब मैं बहुत खुश हो गया था, बड़ी अच्छी मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। यानी अकेला वो यहाँ आया था लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और मुस्तकिल मेहनत की, लगन के साथ। तो 2-3 सालों में उसको वहाँ रहने की आदत हो गई, उसने अपनी ज़िंदगी का बहुत अच्छा सामान कर लिया। आई हैड अ गुड हाउस, प्लेंटी टू ईट एंड प्लेंटी ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास एक अच्छा घर था, बहुत कुछ खाने के लिए था और बहुत कुछ करने के लिए था। वन डे आई वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द सी शोर थिंकिंग अबाउट माई होम अक्रॉस द सीज व्हेन आई सडनली लुक्ड डाउन। तो एक दिन मैं ऐसी चहलकदमी कर रहा था, समंदर के इर्द गिर्द घूम फिर रहा था कि मैंने अचानक नीचे देखा। देयर ऑन द सैंड इन फ्रंट ऑफ मी वॉज अ क्लियर फुटप्रिंट, इट वॉज नॉट माइन बट द फुटप्रिंट ऑफ अनदर मैन। एक दिन मुझे क्या नज़र आया, एक फुटप्रिंट नज़र आया। मैंने जो गौर से देखा तो ये फुटप्रिंट मेरा नहीं था, किसी और इंसान का था। इसका मतलब क्या था कि कोई और भटकता हुआ इस आइलैंड पर पहुंच चुका था। स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर अ क्लियर फुटप्रिंट ऑफ अ मैन. Now students, let's discuss something about Daniel Defoe, the author of the passage. He was an English merchant, writer, journalist and spy, and as well as a novelist and poet. He wrote on many topics, both fiction and non-fiction, that is realistic and non-realistic stories. Robinson Crusoe is his best known novel that he wrote at the age of 60. We earlier read it in the beginning of the novel. So this is the extract has been taken from that novel, that is Robinson Crusoe. This is one of the extract from that novel. And here we have completed the explanation part of this novel, students. I hope that you like it. Please like the video, share it with your friends and comment to tell me that how was the video. I hope you liked it. Thanks for watching the video till the end. Do subscribe to the channel if you are new. Take care. Allah Hafiz.